Hello children, once again welcome to my YouTube channel, and today we'll be discussing another wonderful poem, that is A Tiger in the Zoo, from the book First Flight, Class 10 CBSE. And this poem is written by Leslie Norris. So before we discuss this poem, let us discuss about the poet. George Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He taught at academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University. Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period, and his literary publications have won many prizes. So, my dear children, the full name is George Leslie Norris, and his lifespan is from 21 May 1921 to 6 April 2006. And he was a prize-winning Welsh poet. Welsh poet means a native of Wales. Wales is a part of the United Kingdom. So, he's from Wales, and is also a short story writer. And he was in fact an educator also. He taught at academic institutions in Britain as well as in United States, and is considered as one of the most important Welsh writers of the post-war period after the Second World War, and he has won many prizes also. So that is a brief intro about the poet. Now we'll discuss the poem in detail. A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. So, my dear children, in this poem, you will find two tigers. The first is a tiger that is in the zoo, and then you'll find another tiger that is in its natural habitat, and that there is a contrast, there is a comparison between these two tigers, the tiger that is in the zoo and the tiger that is in its natural habitat. And due to regarding this comparison, a very important message the poet has tried to deliver, and that is sometimes just for the sake of entertainment, just for the recreation of human being, we normally keep these wild animals in zoo, but actually it is not something that is good, or that is something where you can justify the reason, but rather I think animals should be in their natural habitat, and that is something what the poet has wanted to convey. देखिए, इस पोएम में बेसिकली माय डियर चिल्ड्रन जो पोएट ये बताना चाहते हैं कि जानवरों को हम कई बार अपने शौक के लिए और हमारे मनोरंजन के लिए हम उनको जो है चिड़ियाघर में कैद करके रख देते हैं, और हम जाते हैं और उनको देखते हैं, और हम एंटरटेन होते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन जानवरों के साथ जिन्हें हम चिड़ियाघरों में रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इन जानवरों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हम इन जानवरों को एक प्रकार से शोषण कर रहे हैं, क्योंकि इन जानवरों का जो सही जगह है वो है जंगल, फॉरेस्ट। उनको उन्हीं जंगल में रहना है, उन्हीं फॉरेस्ट में रहना चाहिए, लेकिन हम उन्हें ला कर क्या कर रहे हैं, अपनी मनोरंजन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम उनको चिड़ियाघरों में कैद कर दे रहे हैं, जिसके बारे में लेस्ली नॉरिस का कहना है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर इस पोएम के अंदर लिटरली हमें दो प्रकार के टाइगर्स देखने को मिल रहे हैं। एक टाइगर वो है जो जू के अंदर है, जो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर कैद है, और वो घूम नहीं सकता, वो आज़ाद नहीं है। और एक टाइगर वो है जो जंगल में है, नेचुरल हैबिटेट मीन्स प्राकृतिक जो एक वातावरण होना चाहिए जानवर के लिए, उसमें है, उस माहौल में है, वो खुलकर घूम सकता है, टहल सकता है। तो ये लिटरली जो कंपैरिजन है पोएट की तरफ से, वो हम इस पोएम में देखते हैं। We'll move on with the first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage.
सो ही स्टॉक्स मतलब मूव्स, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. ओके. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मीन्स वेरी क्लियर, ब्राइट एंड क्लियर. तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज का मतलब होता है वो पिंजरा, ठीक है, वो जहाँ पर वो कैद है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ही, सबसे पहला वर्ड जो ही यूज किया गया है यहाँ पर टाइगर के लिए, लिटरली यू नो द पोएट हैज ट्राइड टू पर्सोनिफाई द टाइगर. उन्होंने टाइगर को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया वह पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी जानवर को, किसी बर्ड, किसी पक्षी को, या किसी पेड़ को, या फिर किसी नॉन लिविंग बीइंग को हम जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं ना, उसको इंसान के तौर पर पेश करते हैं, तो वो एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है उसे. तो यहाँ पे टाइगर को ही कहा गया. अमूमन हम ही किसको कहते हैं? इंसानों को कहते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपने देखा होगा टाइगर के ऊपर जो है स्ट्राइप्स होते हैं, काली काली जो धारियाँ होती हैं, वो बड़े साफ तौर से विजिबल हैं, दिख रहे हैं वो. और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो धीरे धीरे चल तो रहा है, लेकिन कितने स्टेप्स ले रहा है? फ्यू स्टेप्स, क्योंकि वो जंगल में तो है नहीं, वो एक पिंजरे के अंदर कैद है, तो बहुत ज़्यादा वो घूम भी नहीं सकता खुलकर. तो वो थोड़े कुछ कदम ले रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, वापस आ रहा है, और उन्हीं जो है उसी पिंजरे के अंदर वो घूम रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. अब देखिए, अब अगर आप पंजों की बात करें, टाइगर्स की पंजों की बात करें, तो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो पंजे, और भगवान ने ऐसा उनको दिया भी है कि वो जब चलते हैं तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होता, और ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है ना, एक एडिशनल, एक एडवांटेज है उनके लिए शिकार करने के लिए, क्योंकि आवाज़ नहीं होती उनके पैरों से जब वो चलते हैं, उनके पंजे. तो कभी आपने देखा होगा जानवरों का, खास तौर पे डॉग्स में भी ये चीज़ देखने को मिलता है, उनके जो पंजे होते हैं डॉग्स के भी, जो वो बहुत ही सॉफ्ट मखमली तरीके से होते हैं. तो यहाँ पे वेलवेट का मतलब क्या होता है? जैसे मखमली. तो वो जो पैड्स हैं, पैड्स किसको कहा गया? वो जो पंजे के जो निचला भाग है, द लोअर पोर्शन ऑफ दैट पॉज, दैट इज कंपेयर्ड विथ वेलवेट. सो दिस इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. ठीक है, मेटाफर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है, और कंपैरिजन इस प्रकार किया जाता है कि एक तरीके से उसे मान लिया जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बहुत बहादुर है, तो हम अगर ये कहें कि वो शेर की तरह बहादुर है, वो अलग बात हो गई. लेकिन अगर हम कहें वो देखो वो शेर है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. हमने सीधा जो है उसका कंपैरिजन शेर के साथ किया है. सो दैट इज व्हाट सो इट इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज क्यों? क्वाइट क्यों? क्योंकि वो शांत है. ठीक है. रेज क्यों? क्योंकि अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है तो गुस्सा बहुत अंदर, लेकिन ऊपर से वो कैसा दिख रहा है? एकदम शांत दिख रहा है, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकता वो ना. सो ये जो पहला स्टैंजा है, इसको पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ वाला जो टाइगर है, वो कौन सा टाइगर है? द टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर के अंदर है. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब पोएट ये कहते हैं कि भैया टाइगर तो जू के अंदर है, बट ही शुड बी, लेकिन उसको होना कहाँ चाहिए था? उसको होना चाहिए था लर्किंग इन शैडो. लर्किंग का मतलब होता है टू हाइड, छुपना, है ना. बल्कि उसको तो किसी छाव में या किसी झाड़ियों में छुप कर रहना चाहिए था. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना. और वो जो ऊंची ऊंची सरपत होती है, ऊंची ऊंची जो घास है, उसमें जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए. ठीक है. नियर द वाटर होल, और धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ना चाहिए? पानी का कोई स्रोत है वहाँ पर, हो सकता है पानी का कोई झरना हो, या छोटी सी कोई तालाब टाइप का हो, या कहीं पर भी जहाँ पे वाटर बॉडी है, तो उस पानी की तरफ उसे बढ़ना चाहिए. क्यों? वेयर प्लम्प डियर पास, एक ऐसी जगह जहाँ पर देखिए पानी के पास अक्सर क्या होता है कि बाकी जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, चाहे वो डियर की बात हो या कोई और भी जानवर की बात हो. और अक्सर ऐसे जगहों पर ये जो शेर होते हैं, ये जो है शिकार के लिए घात लगा के बैठे रहते हैं, ताकि जो है ऐसे जगहों पर वो है उनको आसानी से वो हमला करके अपने शिकार को अपने काबू में कर सकें. तो एक्चुअली में ये होना चाहिए था कि झाड़ियों में छुपकर उसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए था, और किसका शिकार करने के लिए इंतजार करते रहना चाहिए था? एक प्लम्प डियर. प्लम्प का मतलब एक मोटा, ताज़ा, है ना. तो ऐसे डियर, डियर मीन्स हिरन, उसकी जो है तलाश में उसको वहाँ पर होना चाहिए था. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village.
अब देखिए, अभी जो सेकंड स्टैंजा हमने इसके पहले देखा, वो कौन से टाइगर की बात कर रहा है? वो स्टैंजा बात कर रहा है द टाइगर दैट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, द टाइगर दैट इज इन द जंगल। ठीक है, अब तीसरा स्टैंजा देख लेते हैं। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। यू नो, अक्सर आपने सुना होगा जंगल के पास जो गांव होते हैं, जंगल से सटे हुए जो गांव होते हैं नो, वहाँ पर अक्सर रात में, अगर आप उन गांव वालों से पूछोगे, आप गांव के जो लोग हैं, तो बताते हैं कि हाँ साहब, रात में अक्सर हम शेरों की जो है दहाड़ने की आवाज़ सुनते हैं, हमको सुनाई देता है ऐसी आवाज़ें। और ये बड़ी स्वाभाविक है। कई बार शेर क्या करता है, कई बार वो चूंकि गांव से सटे रहते हैं जंगल, तो गांव में भी आ जाते हैं कई बार शेर, और जो गांव में जो पालतू जानवर होते हैं उनको अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है, ऐसा होता भी है। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि शेर को करना क्या चाहिए? ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस। स्नालिंग का मतलब होता है अ विशियस ग्राउल, है ना। विशियस ग्राउल का मतलब जोरदार, भयंकर दहाड़ने की आवाज उसे निकालना चाहिए। ठीक है, जंगल के किनारे में, उन घरों के आसपास जो जंगल के किनारे में बसे हुए हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, है ना। बेयरिंग का मतलब दांत दिखाते हुए, फैंग्स का मतलब दांत, है ना, अपने बड़े बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए। हिज क्लॉज, अपने पंजे दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, और उस गांव को जो है एक प्रकार से दहशत में लेते हुए, एक आतंक फैलाते हुए उस गांव में कि भैया मेरी यहाँ पे मौजूदगी है, कोई भी घर से बाहर मत निकलना वरना कोई बच नहीं पाएगा। That type of, that is what actually the real picture of tiger is all about. बट हम लोग उसको क्या किए हैं, जू में रख कर क्या कर दिए हैं, उसकी जो फिरोशियसनेस है उसको हमने क्या किया, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन पोएट कहते हैं लेकिन अफसोस, उसे होना तो चाहिए था जंगल में किसी हिरन का शिकार करते हुए, उसको होना तो चाहिए था जंगल में उन अगल बगल के गांव वालों को डराते हुए, उनको दहशत में लेते हुए। लेकिन अफसोस है कहाँ ये, ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसे एक मजबूत पिंजरे में कैद कर दिया गया है। ठीक है ना, कॉन्क्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो पूरी ताकत है, ठीक है, वो क्या हो गई, उन सलाखों के पीछे बंद गई है। अब वो चाहकर भी अपनी ताकत की नुमाइश नहीं कर सकता वो टाइगर, बिकॉज द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब वो घास में छुपकर शिकार नहीं कर सकता, ऊंची छलांग नहीं लगा सकता, खूब दूर तक दौड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो दौड़ है या उसकी जो चाल है, सब कुछ जो है क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है कि एक बंदिश आ गया, बंदिश में वो फंस गया वो। और जितनी बड़ी वो केज है या जितना बड़ा वो पिंजरा है, बस उतना ही वो चल सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं चल सकता। और वो क्या कर रहा है साथ में, इग्नोरिंग विजिटर्स। विजिटर्स में जो लोग उस चिड़ियाघर में उस शेर को देखने गए, उनको वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। देख कर भी उनको अनदेखा कर रहा है। क्यों अनदेखा कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं इन लोगों पर हमला नहीं कर सकता, मैं इन लोग को डरा नहीं सकता, बल्कि इनको देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है कि आई एम समवेयर imprisoned behind these bars, so it's better to ignore the visitors। so बेहतर यही होगा कि मैं इन लोगों को क्या करूं, नज़रअंदाज करूं, इनकी तरफ ध्यान भी ना दूं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। लास्ट स्टैंजा में पोएट जो है उस शेर की जो एक असहाय जो उसकी जो है कहते हैं ना उसको, हेल्पलेसनेस जो है, उसको इस आखिरी स्टैंजा में दिखाने की कोशिश की। कहते हैं ना जो उसकी मजबूरी या उसकी जो दैन स्थिति है, वो हम आखिरी स्टैंजा में देख सकते हैं शेर का। अब जो है, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है, अब उसको जो आखिरी आवाज़ सुनाई देती है, वो किसकी आवाज़ सुनाई देती है उसको? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है। पेट्रोलिंग मतलब गश्त पर जो गाड़ियाँ घूमती रहती है ना। जू के अंदर भी आप जानते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो जू के अथॉरिटीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, रात में भी जो है गश्त लगाते हैं पूरे जू के अंदर कि सारी चीज़ें सही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वही ये टाइगर अगर जंगल में होता तो इसको किसकी आवाज़ सुनाई देती? इसको हिरन की आवाज़ सुनाई देती, या फिर किसी और जानवर की आवाज़ सुनाई देती, या हो सकता है ये
किसी अपने अपने ही दूसरे टाइगर की आवाज़ सुनता, लेकिन अफसोस यहाँ पर वो किसकी आवाज़ सुन रहा है, गाड़ियों की आवाज़ सुन रहा है। ठीक है ना, उसको हमने क्या किया है, उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाकर ऐसे जगह पर रख दिया है जहाँ पर एक दूसरी ही सराउंडिंग है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। स्टेयर्स का मतलब होता है घूर घूर के देखना, और वो घूर घूर के कहाँ देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, वो खूबसूरत टिमटिमाते तारों को। और किससे देख रहा है, अपनी खूबसूरत आंखों से देख रहा है। आपने देखा होगा टाइगर की आंखें भी रात में जो है चमकती हैं, तो वो जो है अपनी उस खूबसूरत आंखों से उस खूबसूरत तारों को देख रहा है ना। ये जो लास्ट का जो लाइन है, ये बहुत ही एक इमोशनल लाइन है ये। यहाँ पे पोएट जो है वो अपने जो रीडर्स होते हैं, जो रीडर्स जो हम लोग जो पोएम पोएम पढ़ रहे हैं, उनको जो है थोड़ा सा इमोशनल एक टच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब देखिए, अब ये अपनी आंखों से तारों को देख रहा है, और शायद तारों को देखकर हो सकता है वो भगवान से कह रहा हो, टाइगर, कि हे भगवान, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी। हाँ, इस खुले आसमान में मुझे रहना चाहिए था, खुले जंगल में मुझे रहना चाहिए था, लेकिन आज मैं सीमित हूँ। ये तारे ये बंदिश में नहीं हैं, ये खुले आसमान में मौजूद हैं, तो मैं क्यों इन बंदिशों में यहाँ पर जकड़ा हुआ हूँ, क्यों मुझे कैद किया गया है, क्यों मैं यहाँ पर हूँ, क्यों मैं इस तरीके से यहाँ पे एक कैदी की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ, खुलकर मैं अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकता। तो दिस इज़ वॉट दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मैसेज क्लियरली पोएट का यही है कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनको उनके जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है उसी में उनको रहने देना चाहिए। सिर्फ हमारे अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको वहाँ से निकाल के जू में कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंसानों को कैद करके रखते हैं तो इंसान को कैसा फील होगा, वैसे ही जो है इन जानवरों को भी फील होता है, क्योंकि आज़ादी सबको पसंद है। फ्रीडम इज़ समथिंग we all want freedom, in our own comfort zone। और फ्रीडम किसे नहीं पसंद है, एनिमल्स को भी फ्रीडम पसंद है, लेकिन हम क्या क्या करते हैं, हम एनिमल्स के बारे में नहीं सोचते। So now we'll discuss about some literary devices that has been used in this poem. So let's move on to the literary devices. First of all, let us talk about the rhyme scheme. Rhyme scheme जो है ABCB है rhyme scheme poem की। और एक बार फिर से मैं आपको राइम स्कीम समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जो राइम स्कीम है यहाँ पर वो है, अब आप देखिए इसमें राइम स्कीम यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, है ना। तो पहला है स्ट्राइप्स। तो स्ट्राइप्स वर्ड किसी से राइम हो रहा है, केज, क्वाइट, रेज? नहीं, स्ट्राइप्स का जो है ना केज से हो रहा है, ना क्वाइट से हो रहा है, ना रेज से हो रहा है। तो स्ट्राइप्स को लेट अस अज्यूम स्ट्राइप्स को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड का जो लास्ट वर्ड है केज, ठीक है। तो क्या केज स्ट्राइप से राइम हो रहा है? नहीं हो रहा, तो केज को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी। फिर आता है थर्ड लाइन में आते हैं क्वाइट, लास्ट वर्ड है क्वाइट। क्या क्वाइट किसी से राइम कर रहा है? स्ट्राइप से, केज से? नहीं, तो क्वाइट को मान लेते हैं सी। तो क्या हो गया, ए बी सी। और लास्ट है इन हिज क्वाइट रेज। और रेज की बात करते तो रेज वर्ड किसी से राइम हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। जो सेकंड लाइन है स्टैंजा का केज, तो केज और रेज में क्या हो रहा है, राइम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ए बी सी बी, ठीक है। तो यही जो है बाकी भी जो है स्टैंजा में यही राइम स्कीम जो है फॉलो हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और पर्सोनिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। जैसे मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे टाइगर को ही करके डिनोट किया गया है और पोएट ने पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर जानवरों को या बर्ड्स को इंसान के तौर पर पेश करते हैं। इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गया पर्सोनिफिकेशन का। देन वी हैव मेटाफर। मेटाफर मैंने आपको बताया, जब हम इनडायरेक्टली ना कहते हुए डायरेक्ट कंपैरिजन हम जब हम करते हैं तो वहाँ पर मेटाफर का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि टाइगर के जो पंजे हैं उसको हमने किससे कंपेयर किया, वेलवेट से ना, मखमली कपड़े से कंपेयर किया है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। देन वी हैव दिस एंजैबमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एंजैबमेंट? सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क। जब आप देखिए कभी भी पोएम में अगर
एक पहले लाइन से दूसरे तीसरे चौथे लाइन के बीच में कहीं भी फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं है और सीधा जाके 3 लाइन के बाद अगर फुल स्टॉप या कॉमा पड़ता है तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंजैपमेंट। एंजैपमेंट मतलब वही कि जहां पर पंक्चुएशन मार्क का यूज ना किया हो एक लाइन के बाद दूसरे लाइन के में, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंजैपमेंट। देन वी हैव दिस कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है बेटा? कॉन्सोनेंस इज वेरी सिमिलर टू एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में फ़र्क यह है कि एलिट्रेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं वो रिपीट होते हैं तो वो एलिट्रेशन होता है। और कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो वर्ड्स के बीच में कहीं भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि देखिए स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, अगर आप ये वर्ड्स को ध्यान दें तो एस जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार स्टार्टिंग में ही हो रहा है। स्टॉक्स में देखिए पहले एस आया है फिर आखिरी में आया, हिज में बाद में आया है, स्ट्राइप्स में पहले आया है बाद में आया है। तो इस तरीके से जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो एक ही सेंटेंस या फ्रेज में बार बार रिपीट हो वर्ड्स में तो वो हो जाता है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? वो भी कॉन्सोनेंस की तरह ही होता है, लेकिन एसोनेंस में क्या होता है? वॉवेल साउंड रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे मैन सेल द वेडिंग बेल, ये एक एग्जाम्पल है। तो वैसे ही जो है कॉन्सोनेंट साउंड, एसोनेंट साउंड भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उसे भी हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है। ऑक्सीमोरॉन क्या है? यूज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑपोजिट इन मीनिंग। इसको हम एक बार देख लेते हैं। एसोनेंस की मीनिंग एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। एसोनेंस की मीनिंग समवेयर या अगर आप देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है फ्यू स्टेप्स। फ्यू में भी देखिए ई साउंड आ रहा है, स्टेप्स में भी ई साउंड आ रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे सामने एसोनेंस का। और उसके बाद वेलवेट वर्ड में भी देख सकते हैं आप, VELVET। तो फिर ये जो ई साउंड है ना, वॉवल साउंड, ये भी देखिए अब रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कह सकते हैं एसोनेंस का। और उसके बाद जैसे मैंने ऑक्सीमोरॉन कहा, ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को कहाँ मिलता है? क्वाइट रेज, ठीक है ना। क्वाइट रेज इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है? दो ऑपोजिट वर्ड जब एक साथ यूज किए जाते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ एन ऑनेस्ट थीफ, एक ईमानदार चोर। अब इस वर्ड में देखिए कितना झोल है नो, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं दोनों वर्ड एक दूसरे को। अगर वो ऑनेस्ट है तो उसे थीफ नहीं होना चाहिए, अगर वो थीफ है तो वो ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं तो दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है लेकिन हम एक साथ यूज किए। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स very silent. Rage means anger. If you are full of anger, then very obvious there is no place for silence, and if you are very quiet, then there is no place for anger. These two words are opposite to each other, but they are used in a similar context. So this is the example of oxymoron. So I hope this poem is quite clear to all of you. You have understood this poem, and still if you have any doubts you can ask me in the comment section and I will explain this poem again, or I will tell you if you have any confusion regarding this poem. So that was all from this video, and I hope the poem is quite clear to all of you. So that was all. Take care, thank you, and God bless you.